हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आपके अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसका प्रेपरेशन आप इस सेशन को देखते हुए ही कर सकते हो। जी हाँ, आपको पता है कि रिसेंटली देयर इज अ वॉर और अ कॉन्फ्लिक्ट विच इज गोइंग ऑन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। तो आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी अपकमिंग जितने भी एसएसबीज आपके रहेंगे उसमें इसी टॉपिक के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर पर्सनल इंटरव्यू। सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक विच आई एम गोइंग टू कवर टुडे, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आपके पर्सनल इंटरव्यू में इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इशू ऑफ द इजराइल एंड पैलेस्टाइन वॉर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। सो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही नहीं सिर्फ आंसर ही बताऊंगी सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड हाउ टू आंसर दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा आप दे सकते हैं that the roots can be traced back to competing national movements, Zionism and Palestinian nationalism, overlapping territorial claims in historic Palestine, the Balfour Declaration, British mandate policies, and the influx of Jewish immigrants led to tensions between Jewish and Arab communities. The 1948 Arab-Israeli War and subsequent wars further actually entrenched the positions. Second question that can come, and this is important, is what is the significance of the Balfour Declaration? Balfour Declaration इतना important क्यों है? Now this declaration was issued in 1917 and basically it was a letter from the British Foreign Secretary who expressed his support for the establishment of a national home for the Jewish people in Palestine, without prejudicing the rights of existing non-Jewish communities. So basically a declaration के through Jews saw this as backing for a Jewish homeland and by Palestinians as disregarding their national rights. तो इस declaration ने भी एक Jews और Palestinians के बीच में एक दरार जो है वो पैदा किया था। The next question that can come is about the 1948 war which happened and it was also known as the Nakba catastrophe by Palestinians, and इसके through बहुत कुछ important चीजें हुई थी, तो इस पे भी question आ सकता है। For example, this war led to the displacement of around 700,000 Palestinians. Many became refugees in neighboring countries or in the West Bank and Gaza. तो इससे एक बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो इस पे भी सवाल आ सकते हैं। यू शुड बी ऑल्सो रेडी विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द ऑस्लो एकॉर्ड्स पे। ऑस्लो एकॉर्ड्स पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्लो एकॉर्ड्स क्या है। बेसिकली ये 1990s में ये एकॉर्ड साइन किया गया था और ये एक सीरीज ऑफ अग्रीमेंट्स है जो कि इजराइल और पीएलओ के बीच में हुआ था, विच एम्ड बेसिकली फॉर अ टू स्टेट solution. This established the Palestinian Authority and provided for limited self-governance in certain territories. Next question that can come is about Jerusalem. Jerusalem के ऊपर एक question आ सकता है कि that why do you think is Jerusalem so contentious? जेरूसलम को लेके इतना लड़ाई क्यों है? Because obviously it is sacred to Jews, it is sacred to Muslims, it is sacred to Christians, and Israel इनको consider करता है that it is in its undivided capital, but Palestinians regard East Jerusalem, which was actually occupied by Israel in 1967, as the capital of a future state. So this is also, Jerusalem is also a matter of disagreement between the two, between Israel and Palestine. The next question that can come is that how do settlements impact the conflict? Conflict में settlements का क्या role था? Basically West Bank में जो Jewish settlements थे उनको international law के तहत illegal माना गया था, and their expansion complicates the feasibility of a contiguous Palestinian state, and this helped to increase the tensions. तो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ के द्वारा ये इलीगल माना गया है, दैट इज वाई ये कॉन्फ्लिक्ट को और भी ज्यादा प्रोवोक किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी अबाउट द 1967 सिक्स डे वॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर था जो कि सिर्फ 6 दिन के लिए हुआ था और
1967 में हुआ था। तो ये क्या है एक बार देख लेते हैं। बेसिकली इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, ईस्ट जेरूसलम, सिनाई और गोलन हाइट्स को कैप्चर किया था इन वॉर्स में, और ये वॉर में बेसिकली पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को ऑक्यूपेशन करने का एक मौका दिया था, विच कंटिन्यूज टू दिस वेरी डे। सो बेसिकली 1967 के जो 6 डे वॉर था, इट ऑल्सो was had a huge role to play in this particular conflict which is happening presently. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यानी पीए से हामस कितना डिफरेंट है या कैसे डिफरेंट है। सो बेसिकली पीए यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है और ये इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है, वेयर इज हामस एक इस्लामिस्ट ग्रुप है और ये इजराइल के राइट को द राइट टू एग्जिस्ट, इस राइट को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है और उनके साथ दे हैव कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन। पीए जो है बेसिकली वेस्ट बैंक में ज्यादा इनका पावर चलता है और गाजा में ज्यादा पावर चलता है हामस का। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन कम इज व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन इन पीस नेगोशिएशन। जब पीस नेगोशिएशन के बारे में बात चल रही है उसमें सबसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज कौन से हैं जिसमें एक कॉन्फ्लिक्ट का जन्म दिया है। बेसिकली जो मेजर इश्यूज है पीस नेगोशिएशन में जो ज्यादातर बात चल रही है इश्यूज के बारे में, वो है जेरूसलम का स्टेटस क्या होगा, बॉर्डर्स के बारे में, सेटलमेंट्स के बारे में, रेफ्यूजीज के बारे में, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड ऑल्सो म्यूचुअल रिकॉग्निशन। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू में दैट हाउ टू अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इन्फ्लुएंस द कॉन्फ्लिक्ट। क्या कोई रोल प्ले करता है बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में। तो बेसिकली नेबरिंग कंट्रीज हिस्टोरिकली इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सालों से इन्वॉल्व है, कभी डायरेक्टली वॉर्स के थ्रू तो कभी डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू। सो बेसिकली जो जियोपॉलिटिक्स है इस रीजन का, इट इंक्लूड्स द डिफरेंट राइवलरीज एज वेल एज अलायंसेस, और ये बिल्कुल इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के डायनामिक्स को बहुत बड़ी तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, करता आ रहा है और आई थिंक आगे भी करेगा। The next question that can come is why did the peace process stall after 1990s? 1990s के बाद जो peace negotiations की बात हो रही थी वो अचानक से क्यों रुक गया था? Because of a combination of factors, बहुत सारे factors के कारण, जिसमें था violence यानी second इंतिफादा, जो कि एक बहुत ही violent measures थे। उसके साथ साथ leadership में कुछ political shifts दिखाई दिए थे, mistrust ज्यादा बढ़ गया था, settlements expand होने लगे थे और इन सारी चीजों को मिलके negotiations काफी डिफिकल्ट होने लगा था। इसीलिए 1990s के बाद कोई भी पीस प्रोसेस या पीस नेगोशिएशन ज्यादातर रुक गया था। सेकेंड इंटिफादा के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया है जिसके थ्रू वायलेंस बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था, तो इसका इम्पैक्ट के बारे में भी दे कैन आस्क यू इन योर एसएसबी इंटरव्यू। सो बेसिकली ये जो सेकेंड इंटिफादा हुआ था ये 2000 से लेके ईयर 2005 तक यानी 5 सालों तक ये चला था और इसमें बेसिकली एक ऐसा पीरियड क्रिएट हुआ था इस सेकेंड इंटिफादा के टाइम पे दैट इट बेसिकली इंटेंसिफाइड द पैलेस्टीनियन इजरायली वायलेंस। पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में जो वायलेंस था बहुत ज्यादा तरीके से ये बढ़ गया था इन 5 सालों में, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड इंटिफादा। इससे मिसट्रस्ट बढ़ गई थी। इजराइल बेसिकली पीए कंट्रोल्ड बहुत सारे एरियाज को अपने कब्जे में कर लिया था और इसके साथ साथ बेसिकली इजराइल के सेपरेशन बैरियर भी इस सेकेंड इंतिफादा के टाइम पे क्रिएट हुआ था। ओके, सो सेकेंड इंतिफादा के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग अबाउट दैट। इसके साथ साथ बहुत सारी फैक्टर्स के रोल के बारे में भी दे कैन आस्क यू लाइक हाउ डू इकोनॉमिक कंडीशंस फैक्टर इनटू द कॉन्फ्लिक्ट। क्या कोई इकोनॉमिक कंडीशंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस कॉन्फ्लिक्ट में? तो बिल्कुल हाँ, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थे, ब्लॉकेज थे, रेस्ट्रिक्शंस जो थे वो पैलेस्टीनियन के लोगों के लाइवलीहुड्स पे बहुत ज्यादा असर किया था और इससे टेंशंस भी काफी बढ़ चुके थे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन हैज बीन प्रपोज्ड एज अ पीस बिल्डिंग मेजर बिटवीन द टू स्टेट्स। इसके साथ साथ नैरेटिव्स और एजुकेशन कैसे कॉन्फ्लिक्ट के परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस किए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली दोनों साइड से ही डिस्टिंक्टिव नैरेटिव्स हमें देखने को मिलता है जो उनके रेसिडेंट्स को सिखाए गए थे बचपन से और बेसिकली अपने हिस्टोरिकल और नेशनल क्लेम्स पे एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव क्रिएट किया है इजराइल और पैलेस्टाइन ने अपने बच्चों पे, अपने सिटीजन्स और नागरिक पे। और इससे क्या हो रहा है कि इजराइल और पैलेस्टाइन एक दूसरे के सिटीजन्स, एक दूसरे के राइट्स को जो है निगेट कर रहे हैं या डिमिनिश कर रहे हैं। सो बेसिकली यस, एजुकेशनल नैरेटिव्स डिड प्ले अ बिग रोल इन मोल्डिंग देयर माइंडसेट।
The next question that can come is how have US policies impacted the conflict? आपको पता है US is a super power और US का जो है बात चलता है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में, तो ईरान और पैलेस्टाइन के इस वॉर में इस US का क्या रोल था, उनके पॉलिसीज ने कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को इम्पैक्ट किया, किस तरह का इम्पैक्ट था. सो बेसिकली एज आई सेड, US is a super power and it has been the key player in many conflicts, including this conflict of Israel and Palestine. और सबसे बड़ी बात यह है कि हिस्टोरिकली यूएस ने हमेशा से इजराइल को सपोर्ट किया है और उनके साथ पीस डील्स करने का भी सोचा है. इनके जो पॉलिसीज है, यूएस के जो पॉलिसीज है, वो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस के टाइम पे बहुत ज्यादा वेरी किया और इसके थ्रू इनके जो कॉन्फ्लिक्ट है, इन कॉन्फ्लिक्ट को भी इम्पैक्ट किया है. सो यस, बेसिकली यूएस पॉलिसीज डिड इम्पैक्टेड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन. एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज द राइट ऑफ रिटर्न फॉर पैलेस्टीनियंस. पैलेस्टाइनियन रेफ्यूजीज के लिए जो राइट फॉर रिटर्न जो राइट है, क्या ये कॉन्टेंशियस इशू है इस कॉन्फ्लिक्ट में? सो बेसिकली बिल्कुल है. पैलेस्टीनियंस फ्रॉम द टाइम दैट दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड, वो अपने ये राइट ऑफ रिटर्न को एक फंडामेंटल राइट मानते हैं और यूएन रेजोल्यूशंस के तहत भी इनका जो राइट ऑफ रिटर्न है उनको एक फंडामेंटल राइट भी माना गया है. सो इजराइल जो डरते हैं ये कि अगर वो Israel fears that allowing all refugees to return would alter its Jewish demographic majority. तो इजराइल इसलिए डरते हैं कि अगर वो सारे रेफ्यूजीज को रिटर्न करवा ले, वापस ले ले, तो उससे उनका जो Jewish demographic majority है उसमें एक बहुत बड़ा असर हो सकता है. सो जी हाँ, राइट ऑफ रिटर्न भी इस कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के रोल के बारे में. व्हाट रोल डज दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन प्ले इन दिस कॉन्फ्लिक्ट? सो बेसिकली आईसीसी वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड, इनके केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं. सो बोथ द पैलेस्टीनियन एंड इजरायली एक्शंस हैव बीन स्क्रूटिनाइज्ड बाय आईसीसी और पैलेस्टीनियंस ने इजरायली कंडक्ट पे एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्ली रेज किया है और बहुत सारे बाइसेस पे भी उन्होंने प्ली रेज किया है. एंड नाइदर इजराइल नॉर द यूएस स्टेट्स आर पार्टीज टू द रोम स्टैट्यूट व्हिच एस्टैब्लिश्ड द आईसीसी, बट पैलेस्टीनियन जॉइंड इट इन 2015, therefore granting the court jurisdiction over alleged crimes in its territories. तो पैलेस्टाइन ने आईसीसी को ज्वाइन किया था 2015 में, तो इन्होंने कोर्ट जुरिस्डिक्शन को अपने क्राइम्स पे, जो टेरिटरीज पे होते हुए क्राइम्स पे, उन्होंने एक परमिशन ग्रांट किया है. The next question that can come is about the BDS movement, जो कि काफी पॉपुलरली अभी आपको देखने को मिला था. So what is BDS movement? Basically it is the boycott, divestment and sanctions movement. तो ये कॉन्फ्लिक्ट में पैलेस्टाइन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया. तो इस बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह इन्होंने इम्पैक्ट किया है कॉन्फ्लिक्ट को. सो बेसिकली BDS मूवमेंट इजराइल पे प्रेशर डालना चाहते हैं थ्रू डिफरेंट इकोनॉमिक एंड कल्चरल बॉयकॉट्स, डाइवेस्टमेंट्स एंड सैंक्शंस टू कंप्लाई विद द इंटरनेशनल लॉ एंड पैलेस्टीनियन राइट्स. हाउएवर BDS मूवमेंट जो है ये काफी कंट्रोवर्शियल है, जहां पे सपोर्टर्स जो है इन मूवमेंट का, दे वांट टू सी इट एज अ पीसफुल रेजिस्टेंस मेथड, लेकिन जो क्रिटिक्स है वो इस पर्टिकुलर मूवमेंट को एक एंटी सेमाइटिक या फिर एक पीस प्रोसेस को अंडरमाइन करने के हिसाब से व्यू कर रहे हैं. The next question that can come is about the Abraham Accords. तो Oslo Accords हमने देखा है, तो ये एक और accord है which happened in 2020. Abraham Accords basically Israel और बहुत सारे अरब कंट्रीज के बीच का जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए साइन किया गया था. और जो इस accords का एक हिस्सा था, they tried to promote regional peace and it tried to counter Iranian influence, but critics argued that it sidesteps the Palestinian issue. ठीक है, they tried to promote the regional peace, लेकिन उन्होंने पैलेस्टीनियन का जो इशू है, पैलेस्टाइन इशू को उन्होंने बिल्कुल साइड में रखा था इस एक्कर्ड्स में. नेक्स्ट इज इस कॉन्फ्लिक्ट में कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्पेसिफिकली सर्विलेंस और डिफेंस ने एक रोल प्ले किया. आपको पता है बिकॉज इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, सो दोनों देशों का जो डिफेंस है वो एक मेजर रोल प्ले किया है इस कॉन्फ्लिक्ट में. तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सवाल आ सकता है, बिकॉज यू गाइज आर गोइंग टू ज्वाइन आवर इंडियन डिफेंस फोर्सेस, सो ऑब्वियसली यू शुड नो अबाउट द डिफेंस स्ट्रैटेजीज और द डिफेंस अबाउट ऑफ अदर कंट्रीज और व्हेन सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन. तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखना इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिकली आयरन डोम के
बारे में, जो कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से लेकर सर्वेलेंस टेक जो वेस्ट बैंक में यूज किया गया था, ये सिक्योरिटी डायनामिक्स को और बैलेंस ऑफ पावर को बहुत ज्यादा तरीके से अफेक्ट किया है। एंड यस, आयरन डोम ने प्रोटेक्शन तो दिया है, बट ऑल्सो प्राइवेसी और ह्यूमन राइट्स पे भी एक सवाल उठाया गया है। मेनी पीपल हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट इट्स रोल in privacy and human rights. The next question that can come is about the role of women. So again, specifically a question tab aa sakta hai if you are a female candidate. So the interviewing officer can ask you that what has the role of women evolved in the Israeli-Palestinian conflict? Women का क्या role था वहाँ पे? Basically इस दो देशों के conflict के बीच में हमने एक बहुत अच्छा चीज देखा है, the silver lining under the dark cloud. That is, women has taken roles as activists, fighters, peacemakers and community leaders on both the sides. Organizations जैसे Women Wage Peace जैसे organization ने peaceful resolution के लिए promote किया है। Traditional gender norms कुछ areas में limited है और इसके through female participation भी limit हो गया है formal negotiations में, but nonetheless the women are raising their voices from both sides, from both Israel and Palestine as well on this conflict. Next is, how has recent discoveries of natural gas in the Eastern Mediterranean impacted the conflict? तो ये भी बहुत important एक question आ सकता है, क्योंकि recently Eastern Mediterranean region में natural gas discover किया गया, तो क्या ये discovery एक conflict में impact लाया है या ला सकता है? तो basically ऑब्वियसली जहाँ पे गैस डिस्कवर होती है वहां पे नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं और उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी मिलते हैं। सो बेसिकली ये जो मेडिटेरेनियन, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन्स में आप देख सकते हैं नेचुरल गैस डिस्कवर्ड हुआ है। दिस हैज सर्टनली लेड टू रीजनल कोऑपरेशन लाइक बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट, बट इट हैज ऑल्सो रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट रिसोर्स राइट्स, स्पेसिफिकली फॉर गाजा व्हिच सिट्स नियर द पोटेंशियल रिजर्व्स. The next question that can come is about the internal divisions within the Palestinian territories. Palestinian territories के internal divisions के बारे में आपको idea रखना important है. Basically आपको पता है that Hamas-Fatah split के तहत there are ideological, generational and regional differences, और इसके लिए West Bank का अपना socio-political dynamics है जो कि गाजा से काफी different है, और there's been a diaspora of Palestinian population with its perspective. The next and the last question that can come from this, from this particular issue, it can be, how do Israel's internal politics influence its approach to the conflict? Israel की internal politics इस conflict को कैसे impact किया है? So basically Israel का multi-party system है, जिसका मतलब है coalition politics often influence policies. So जो parties यहाँ पे coalition politics create किया है, या जो multi-party system में जो parties है, it ranges from secular parties to religious parties, left to right, with varying views on settlements, peace negotiations and security measures. तो जी हाँ, इजराइल की internal politics भी एक बहुत बड़े तरीके से इस conflict पे impact create किया है. Lastly, how has digital media influenced perceptions of the conflict? Thanks to the digital media, social media के तहत हमें इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में कहीं से भी बैठ के इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बहुत अलग टाइम से और रियल टाइम से हमें देखने को मिल रहा है. एंड आई थिंक दैट दिस कैन मोबिलाइज द इंटरनेशनल ओपिनियन, बट इट कैन ऑल्सो स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा. तो यस, एक तरीके से सोशल मीडिया हैज प्लेड अ ह्यूज रोल इन गिविंग वेरी गुड इंफॉर्मेशन एंड रियल टाइम इवेंट्स एंड देयर इंफॉर्मेशन टू द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, बट यस, इट ऑल्सो हैज इट्स नेगेटिव साइड्स. तो बहुत लोग जो है इस पर्टिकुलर चीजों को अपने मिस इन्फॉर्मेशन या फिर प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. इसका मिसयूज भी हो सकता है. सो आई होप दैट दिस पार्ट, which is the first part of this SSB interview questions that can come on Israel Palestine conflict, I hope कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा हो. Now I will also bring for you in the next part more questions from this conflict, क्योंकि ये बहुत important एक historical conflict है और हाल फिलहाल में ये हुआ है. तो अगर आपका SSB हाल फिलहाल में है, अपकमिंग SSB में ये टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा. इट कैन कम इन योर GD, इट कैन कम इन योर लेक्चरेट, इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड डायरेक्टली टू यू बाय द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इन योर पर्सनल इंटरव्यू. तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग फुल A to Z जो है इस टॉपिक के बारे में जान के जाओ और प्रिपेयर होके जाओ, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए यू कैन आंसर इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल मैनर. तो ऐसे ही अगर आपको SSB इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन करनी है तो आप हमारे SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इन द एंटायर मार्केट. इसमें हमने आपके लिए प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस
बेसिक्स कवर किए हैं। सिर्फ यही नहीं, इस कोर्स के थ्रू आप हमारे साथ हर दिन लाइव क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं और हर मंथ नए बैचेस में का हिस्सा आप बन सकते हैं। बाकी अगर कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी कोर्सेस हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा। बस कोर्स को सब्सक्राइब करने के वक्त ये जो कोड है Warrior10, इसको जरूर यूज कीजिएगा इफ यू वांट अ 10% डिस्काउंट। सो आई सी यू नेक्स्ट इन द सेकंड पार्ट वेयर आई विल bring more important questions on this particular topic of Israel-Palestine conflict. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।